મિત્રો ખબર.com આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરીશું બોરસદ તાલુકાના નાપા ગામના લોકસેવક અને દુઆઓથી લોકોની મુશ્કેલીઓ દુઃખ દર્દ દૂર કરી વ્યક્તિને જીવન જીવવાનો નવો મંત્ર આપતા નાપા ગામના શેરુ બાપુ વિશે, જેઓ ચરોતર પંથકમાં અને ગુજરાત રાજ્ય બહાર શેરુ બાપુ તરીકે ખ્યાતિ ધરાવતા હતા। તેઓની તાજેતરમાં વફાત થઈ છે। શેરુ બાપુની લોકપ્રિયતા અને ખ્યાતિ જોતા શેરુ બાપુ જ્યારે નાપા ગામે તારીખ 9 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ સોમવારના દિવસે જ્યારે તેઓની વફાત થઈ ત્યારે તેઓના જનાજાની અંતિમ નમાઝમાં હજારોથી હજારો લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી, જે તેમની લોકપ્રિયતાની સાબિતી છે। એટલું જ નહીં, તેમની વફાતના સમાચાર સોશિયલ મીડિયામાં વહેતા થતાં જ ચરોતર અને રાજ્યભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં તેમના ચાહકો, મુરીદો, સગા સ્નેહીઓ અને ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા અને ભારે હૈયેથી તેઓના જનાજામાં જોડાઈ નમાજ પઢી અકીદત સાથે તેઓને સુપુર્દ ખાક કરી તેઓ માટે ખાસ દુઆ ગુજારી હતી। ઉમટી પડેલી આ જનમેદનીએ મૈયતમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં હાજરી આપી એ સમગ્ર નાપા ગામના ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ બનાવ તરીકે જોવામાં આવે છે। મરહૂમનો એક જ જીવન મંત્ર હતો, ખલ્ક કી ખિદમત ખુદા કી ખિદમત, એટલે કે લોકસેવા એ જ પ્રભુ સેવા। હજરતે ઉત્તર પ્રદેશના મકનપુર શરીફના સૈયદ જિંદા શાહ મદાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહિ સલામના દમ મદાર સિલસિલા અને સૂફિયત વિચારધારા સાથે મરહૂમ શેરુ બાપુ જોડાયેલા હતા। તેઓ એકદમ સરળ અને સાદગીપૂર્વકનું જીવન જીવતા હતા। તેઓના નજીકના લોકોનું અને તેમને માનનારા લોકોએ તેમના જીવન દર્શન અંગે ખબર.com સાથે વિચારો શેર કરતા જણાવ્યું હતું કે શેરુ બાપુ અનોખા વ્યક્તિત્વના ધણી હતા અને તેમનો સમગ્ર જીવન સુન્નતે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જીવનની નકલ કરી અને જીવતા હતા। તેમની નમાજ, ઇબાદત અને પરહેજગારી ઉપર તેઓ ખાસ ભાર આપતા હતા। તેઓ રૂહાનિયત અને ઇલ્મથી અનેક મુરીદો અને અકીદતમંદોના તમામ દુઃખ દર્દ અને તકલીફોને માત્ર દુઆઓથી શિફા આપી રાહત આપતા હતા। શેરુ બાપુ એટલા લોકપ્રિય બન્યા હતા કે તેમણે જ્યારે આ ફાની દુનિયાને અલવિદા કહી ત્યારે તેમના મુરીદોએ હજારોની સંખ્યામાં બાપુને અંતિમ વિદાય નાપા ગામના ઇતિહાસમાં એક ઇતિહાસ તરીકે અંકિત થઈ છે, જેઓની ગેરહાજરી બાદ આ હસ્તીના કિરદાર વિશે જોવા મળ્યાનું નાપાના ગામ લોકો માની રહ્યા છે। વધુમાં મરહૂમ શેરુ બાપુની ખાલી ગાદી ઉપર તેમના શહેજાદે આરીફ બાપુ મદારીને તખ્ત નસીબ કરી મદારી સિલસિલાને આગળ ધપાવી લોકસેવા માટે તેઓને નક્કી કરાયા છે, જેઓ હવે આ સિલસિલાને આગળ ધપાવશે। खुदा या इलाही शाह प्यारे के लिए अपनी चाहत और अपना इश्क दे, मेरे ख्वाजा शाह साहन रब्बना या खुदा हुब्बे मोहम्मद मुझको दे, बहरे सानी मौलवी अब्दुल जलील तू ही हो हर हाल में मेरा कफील, मेरे ख्वाजा मौलवी नजमुद्दीन कर दे अपनी महर से रोशन जबी, बहरे जाग बाग शमसुद्दीन हक मुनकशिफ हो मुझ पे हालत तबक, बहरे मुर्शिद सदक़ल बेली सामने तेरे हो या रब्बुल तज़ीम या इलाही शेरू शाह के वास्ते नेमत इरफान मुझको बख्श दे, या इलाही शेरू शाह की हर दार का सदका हुजूर शाह ज़ैनुल आबिदीन हज़रत पाकर इमाम जाफर सादिक को दीदार का सदका। जी, सैयद अब्दुल कादिर अहमद हुसैन बापू खलीफा शेखुल इस्लाम और दारुल अहले बैत नाज़िम आला और नापा शरीफ। देखिए, शेरू शाह बापू को मैं बचपन से जानता हूँ और हमने उनके घर में बैठकर उनके वालिदा उनके वालिद के साथ रोज़ाना जो नापा वाटा में उनका मकान था, मक्कन शहीद दरगाह के पीछे, वहाँ हम बचपन से उनके साथ रहते थे।
बचपन ही से उनके अखलाक अच्छे थे और लोगों को एक साथ मिलाना यह इनका काम था, किरदार रहा है। लेकिन जब से कुतुबुल मदार सिलसिले के वो खलीफा बने तब से लेकर आज तक उन्हें दीन और सुन्नियत का काम किया है और लोगों को जोड़ने का काम किया है, न कि तोड़ने का। कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुद्दत से, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। अब उनकी खोट तो शायद खुदा भर दे, लेकिन वो जो काम कर गए हैं ऐसा काम कोई और करे मेरी नज़रों में कम है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि उनकी औलाद जो है उसी रास्ते पर चलते हुए लोगों को जोड़ने का काम करे, दीन सुन्नियत का काम करे और सिलसिला बढ़ाने का काम वो करते रहे। मेरा नाम महबूब खान रहीम खान पठान है और मैं यहाँ नापा का वासिंदा हूँ और सोशल एक्टिविटी करता हूँ और खेती का काम करता हूँ। दरअसल बात क्या है कि इनके वालिद साहब थे, बड़े मुखलिस थे और इनकी नस्ल में से इन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त से यहाँ काम किया है कौम के अंदर, कस्बे के अंदर, और अल्लाह ने इनका फैज़ शेरू मियाँ के खून के अंदर उतारा है। और शेरू मियाँ का असल में क्या था कि वो सूफ़ी लोगों के साथ बैठना उठना था और ख़ास करके मदार जो फ़िरका है उसके साथ उनका ज़बरदस्त दिली लगाव था। उसकी वजह से इनको दुआएं मिली थी और इनको बख्शिश भी मिली थी। और बख्शिश के तौर पर कोई अल्लाह वाले ने इनको कहा था कि भाई मैं तुमको बख्शिश के तौर पर ही ये खिदमत के लिए देता हूँ और आप कौम की खिदमत करो, इंसानियत की खिदमत करो। तो वो उन्होंने बहुत दिल से, बहुत लगाव से और बहुत मेहनत से की। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए उन्होंने मुसलसल मेहनत की थी और इसकी वजह से इतनी इनकी मकबूलियत हुई, इतनी मकबूलियत कि गाँव की हदों को छोड़कर दूर दराज तक उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले, इनकी मेल मोहब्बत करने वाले बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनके मतलब काम किए लोग प्रभावित हुए थे और इसकी वजह से उनकी मकबूलियत बहुत हुई थी। उसके बारे में देखो, इंसान जिस तरह के जिस मकसद से ज़मीन के अंदर एक नेकियां बोता है, अल्लाह उसको इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी बड़ी मतलब कि उसकी फसल पैदा करता है और इनकी बोई हुई नेकियों का ही नतीजा उनकी था कि इंतकाल के बाद जो लोगों का हुजूम इनके पीछे जो लगा। और इंसान की मकबूलियत का पता कब चलता है कि इंसान जब इस दुनिया से विदा हो जाता है, इसके पीछे कितने लोग आते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी मकबूलियत है। और ऐसी मकबूलियत नापे के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है जो इनके जनाजे के अंदर लोगों का जो हुजूम देखा वो देखने को मिला। मेरा नाम आरिफ शाह मदारी है। मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज शेरू साहब बापू वक़ारी मदारी का शहज़ादा हूँ। लोग जिनको शेरू बापू के नाम से याद करते थे, मशहूर थे पूरे गांव में और अतराफ़ के पूरे इलाके में शेरू बापू के नाम से ही पहचाने जाते थे। शेरू बापू के पर्दा होने के बाद में ऐसा एहसास हुआ कि जो दिमाग में नहीं आती थी शख्सियत कि ये इस मकाम तक पहुँचे हैं, इतना अरफा इनका मकाम है, जाने कहाँ से इतनी पब्लिक, इतनी तादाद में भीड़ आई है। हज़ारों की तादाद में हमने या नापा के लोगों ने कभी इतनी भीड़ कभी किसी शख्सियत के इंतकाल के बाद में नहीं देखी। उतना मजमा, इतनी भीड़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेरू साहब बापू वक़ारी मदारी के जनाजे में शामिल हुई थी। आज शेरू साहब बापू मदारी रहमतुल्लाह अलैह का एक ही मंशा था, सर्विस टू मैन काइंड, सर्विस टू गॉड, जिसे गुजराती में कहा जाता है जन सेवा तेज प्रभु सेवा, खिदमत खल्क जिसे कहा जाता है। मेरे रब की मखलूक, इसकी रहनुमाई करना, इसकी मदद करना, उसको सुधारना, सीधे रास्ते पर लाना, भटको हो को सीधा रास्ता दिखाना और एक दूसरे का सम्मान करना, हक अदा करने का, हक तल्फ न करना, यही इनका मंशा था। और सबको मेरे रब के करीब ले जाने का, मेरे मुस्तफ़ा के करीब ले जाने का इनका एक गोल था। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद नज़ीर कादरी सरवरी है और मैं शेरू बाबा का खलीफा हूँ। देखो, शेरू बाबा एक अजीम सूफ़ी कामिल थे, बहुत ही परहेज़गार उनकी शख्सियत थी जिसको पहचानना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम था। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा नवाजा था कि सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि राजस्थान, बॉम्बे, अमेरिका, लंदन से 8 बरस से मैं इनकी खानकाह में आता जाश तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा
ताकत, रूहानी ताकत अता फरमाई थी कि बे औलाद जब इनके दरबार में आते थे और हज़रत शेरू साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़बान से कहते थे अल्लाह ताला कुतुबुल मदार के सदक़े से जा तुझे औलाद वाला बना दे, तो अल्लाह ताला कुतुबुल मदार के सदक़े से शेरू बाबा की ज़बान में हक़ अता फरमा देता था। और अल्लाह ताला उनकी ये करामत सरकार दो आलम की नज़र करम हो गई कि आज हर तरफ, हर शहर, हर नगर में शेरू बाबा का नाम रोशन और ज़मीर दिखता नज़र आ रहा है। मेरी तारीफ़ हज़रत मौलाना अकबर रजा अशरफ़ी खलीफा शेखुल इस्लाम और शेरू बापू की सबसे बड़ी शान ये है कि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्रों को बुलंद किया और उनके जनाजे की तादाद में अवाम, सुन्नी अवाम जो बॉम्बे से, राजस्थान से और नापा गांव वालों ने खूब मैयत के अंदर और जनाजे के अंदर इस खानका को आबाद किया। इस खानका में जब भी बैठते थे कोई भी आता था, छोटा आता था, बड़ा आता था, सबसे अखलाक और मोहब्बत से मिला करते थे। और सबसे बड़ी उनकी नीयत ये थी कि जो भी आता उनकी मुरादों को पूरी कर देते और अखलाक से पेश आते थे और सलाम दुआ करते थे और लोगों को यही कहते थे कि इस खानका से जाए तो नमाज हमेशा पढ़ते रहे, पड़ोसी के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ अखलाक से पेश आया। मेरा नाम हाजी सिकंदर खान लतीफ़ खान पठान नाप। शेरू बापू की खुसूसियतों का कोई बार नहीं। इनके साथ मैं 40-50 साल से रहता हूँ, कभी भी मैं इनसे जुदा नहीं हुआ। तकवे की कोई बात करूँ तो कभी इनकी नमाज तर्क नहीं हुई। इनके सोबत से मेरी भी नमाज हज के बाद अभी कोई तर्क नहीं हुई और इनसे तकवा भी मिला, परहेजगारी मिली। नापा में लोकप्रियता बढ़ने का कारण ये था कि कभी लखपति आवे या गरीब में गरीब इंसान आवे तो इनकी खिदमत, शेरू बापू इनकी सेवा, इनके जो काम होता था, कोई तकलीफ़ होती थी वो पार करते थे। सलातम